नमस्कार दर्शकों, मैं निशिन वोंगमू कारमा और आप देख रहे हैं अरुणाचल एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के मास इंटरेक्शन में। जी हाँ, ये मास इंटरेक्शन में अरुणाचल के कई अलग अलग हिस्से से पुराने और नए टूर ऑपरेटर्स आए हैं। जी हाँ, तो चलिए उनसे जानें कि अरुणाचल प्रदेश में टूरिज़्म को और आगे बढ़ाने के लिए और इस मास इंटरेक्शन के मूल मकसद को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सर, आज के इस पहले मास मीट का मूल मकसद क्या है? The main motto of this gathering is since 2023 in the month of September there was an election, and then immediately after that election there are lots of our tourism activities started. Our season came and we could not gather. So today we took the right time and the right date for gathering of all the tour operators. Since we are professionals, we were engaged before, so this is the right time that we took and we have gathered here. Just an interaction of the new tour operators with the old senior tour operators, and there was a communication gap with the new tour operators and the senior tour operators and the new executive members of Arunachal Pradesh Tour Operators Association. The induction program was held today. ओके सर, अभी अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन में कितने टूर ऑपरेटर्स हैं? There are more than 200 tour operators registered, but the active tour operators is around 30 to 40 tour operators. They are actively working out within the periphery of the state. ओके, तो सर आपको क्या गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट या मिलता है? अभी फ़िलहाल राइट नाउ हम लोग तो अभी नया एग्जीक्यूटिव बना है। फ़िलहाल अभी तक हम लोग अप्रोच नहीं किया है गवर्नमेंट को, लेकिन अभी नया गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैन अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पेमा खांडू सर, और हमारा नया जो भी टूरिज़म मिनिस्टर है, सुना है कि हमारा जो नया जो टूरिज़म मिनिस्टर है वो हमारा पीडी सोना सर है। तो once again I congratulate him, P.D. Sona sir, to be the new tourism minister of Arunachal Pradesh, and the chief minister Sri Pema Khandu sir to be the new chief minister of Arunachal Pradesh. We will be looking forward to meet them, and then we will place our grievances and all, and we will work together with the government for the growth of tourism industry in Arunachal Pradesh. Actually हमारा एसोसिएशन सिंस इट इज़ 1997 का है। हमारा एसोसिएशन बहुत साल हो गया है, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, हम लोग अभी नया फॉर्मेशन न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इलेक्ट हुआ है। सो हमारा प्रीवियस जो टेन्यूर में हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर दर्जी खांडू, उसने हमारा एसोसिएशन को ही गेव अस अराउंड 10 लाख रुपीज़ एज एन corpus fund for our tourism industry for the Aptua. And then next, our Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu, he has also enhanced that 10 lakhs to 1 crore for the corpus fund of our this tour operator association. So I am very much thankful to him, and hopefully it will be enhanced more in near future, and we will work together in this field. तो सर, आप लोग के बिहाफ में सरकार और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को तो मैं इतना ज़्यादा मैसेज नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि दे आर मोर पावरफुल एंड दे आर मोर लाइक एक्सपीरियंस देन अस। बट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म we will always give an advice to the government that since Arunachal is a very much strategic state as per the international boundary is located, so we have to go for this quality tourism. We should not go for mass tourism. We should go for a sustainable tourism and niche tourism. That will be my advice to the government, and my advice to the public is to maintain cleanliness, sustainability, conservation of all the natural resources and all the tourism properties and all the infrastructure of the state. That will be my suggestion to the public of this Arunachal Pradesh. My name is George Tagu, and I'm running a tour operator firm called Hilbert Travels, and I'm from Boleng Siang district. ओके सर, ये जो आज का मास मीट इंटरेक्शन प्रोग्राम था, इसमें आप लोगों ने क्या बातें की और क्या जानने को मिला आपको?
नहीं, लाइक आज का जो मीटिंग था, जो गेट टुगेदर जो मीटिंग था, वो जो था कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूर ऑपरेटर्स लोग को, फिर उसके बाद में जो अभी नया नया जो टूर ऑपरेटर्स लोग आया हुआ है, तो वो लोग के लिए, वो लोग ये फील्ड में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका कुछ थोड़ा सा वो लोग को गाइडेंस मिला। वो लोग को जूनियर्स लोग को जो नया नया जो आया है उसको गाइडेंस दिया हुआ था। और उसके बाद में सिंस लाइक अभी तक जो टूर ऑपरेटर्स है, उसके बाद में जैसे टूर करता है उसको क्या क्या तकलीफ मिला है, और उसके बाद में कुछ क्या क्या न्यू इम्प्लीमेंटिंग आइडियाज़ डालना चाहिए, तो उसी का डिस्कशन था आज का। सर जैसा कि आपने बताया आप बोलंग से जी हैं, जी। तो वहाँ पे क्या पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए? सी बोलेंग पे तो लाइक बोलेंग तो बहुत ही एक छोटा जगह है, बट इट्स वेरी सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट एंड स्मॉल हिल्स। तो एंड ऑल्सो वी हैव अ वेरी गुड रिवर्स ओवर हियर। सो माय मेन जो पॉइंट होगा उसके लिए, अट्रैक्शन के लिए, दैट इज टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का जो अट्रैक्शन है, उसमें जो एंगलिंग स्पॉट है वो बहुत अच्छा से वहाँ पे प्रमोट हो सकता है वहाँ पे, इफ़ गवर्नमेंट एंड जो एंगलिंग टूर ऑपरेटर्स लोग हैं, जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स लोग हैं, वो लोग अगर उस पर थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो एक हो सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट मेरा ख्याल से बोलेंग पे, अभी तक बोलेंग इट्स अ वेरी वर्जिन लैंड, लाइक जस्ट हार्डली लाइक 4 और मे बी लाइक 10 to 15 क्लाइंट इन ए ईयर कभी कभी आता है, जो वो भी हम लोग लाइक टूर ऑपरेटर्स लोग वो लोग को आइटिनरीज में हम लोग डाल देता है, मल्टी डे आइटिनरीज में, तब उसका कारण आता है। बट मेरा ख्याल से इसको जो बोलेंग है उसको एक ये भी एक हब भी हम लोग बना सकते हैं, लाइक योगा वेलनेस सेंटर, ये सब भी कर सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट है, उसका जो वेदर कंडीशन है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, लाइक इफ़ यू सी द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो द रिवर्स, एंड उसके ऊपर में पॉपुलेशन भी बहुत कमती है वहाँ पे, नो मच ट्रैफिक। तो उसके लिए लाइक वहाँ पे अगर वो आइडिया पे अगर फोकस करेंगे तो बोलेंग कैन बी प्रमोटेड। सर जैसे आपने ये 2 आइडियाज़ बताए, जी, इसको इनिशिएट कराने के लिए आप गवर्नमेंट को क्या एडवाइस या फिर मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को तो लाइक सी, लाइक गवर्नमेंट दे हैव अ वेरी गुड लाइक मैकेनिज्म विद देम। वो लोग के पास में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा लाइक टूरिज्म का एक्सपर्टीज़ है, ऑफिसर्स है। तो मेरा ख्याल से तो हम वो लोग को एडवाइस देना तो देट वोंट बी ए लाइक पर्सनली मी लाइक देट वोंट बी ए गुड आइडिया, लाइक वो एक अच्छा सजेशन देगा। बट पर्सनली अगर हमको अगर कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको पूछेंगे तो लाइक माय पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी लाइक जो सब्सिडाइज जो स्कीम्स वगैरह होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट उसका ऊपर पे अगर कुछ नॉट ओनली लाइक बोलेंग, लाइक ऑल ओवर अरुणाचल के लिए अगर कुछ अगर सब्सिडरी अगर कुछ चीज़ स्कीम्स वगैरह अगर कुछ प्रोवाइड करते हैं तो डेट वुड बी ए गुड एंड बेनिफिट फॉर द पीपल लाइक लोकल टूर ऑपरेटर एंड ऑल्सो फॉर द टूरिस्ट। मेरा नाम फुपला सिंफो है, मैं म्याओ से हूँ। मैं एक टूर ऑपरेटर हूँ, रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर, नामदफा टूर्स एंड ट्रैक्स के नाम से। सर जैसा कि पहला गेट टुगेदर है आपदा के थ्रू से, तो आज ये मीट में क्या क्या हुआ और क्या बातें मतलब ये हम लोगों का टूर ऑपरेटर जितना भी है अरुणाचल का, उनका फर्स्ट गेट टुगेदर है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो इसमें इंटरेक्शन हुआ, जो नया एग्जीक्यूटिव मेंबर है, नया सेक्रेटरी, नया प्रेसिडेंट है, नया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग है, और अरुणाचल में किस तरह टूरिज़्म को आगे बढ़ाया जाए और क्या क्या तकलीफ़ है, उसमें क्या क्या रेमेडी लाया जाए, और सब जगह में पूरा अरुणाचल में कैसा टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। हम लोगों का जो म्याओ में टूरिज़्म, सामने नामदफा नेशनल पार्क है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म बहुत ज़ोर से हो सकता है, जिस तरह पहले से भी हो रहा है। वो नामदफा टूरिज़्म सर्किट एक अरुणाचल का सबसे पुराना टूरिज़्म सर्किट में से है। उसमें ट्रैकिंग, बर्डिंग, बटरफ्लाइंग सब होता है। और अब म्याओ एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह टाउन, उसमें बहुत सारा नया ईटरीज है, और सामने देखने के लिए जैसा म्यूज़ियम है, म्याओ में एक मिनी ज़ू है, टिबेटन रिफ्यूजी कैंप जो चियोफलिन के नाम से जानता है, वहाँ पे एक कारपेट सेंटर है,
तो काफ़ी, और रिवर साइड में बहुत अच्छा लाइक घूम सकता है म्याओदिहिंग रिवर के पास में, प्रॉपर म्याओ में। सर, आप अपने फ्यूचर टूरिस्ट के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जब एक टूर ऑपरेटर है तो हम लोग चाहता है कि हम लोग का अरुणाचल में ढंग का टूरिस्ट आओ, अच्छा टूरिस्ट आओ, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो या सामने में से आसाम से क्यों ना आए, लेकिन एक अच्छा माइंडसेट के साथ आओ और अच्छा सा एंजॉय करके जाओ। और एनवायरनमेंट को भी, हम लोगों का एनवायरनमेंट को भी क्लीन करके रखो, यहाँ वहाँ प्लास्टिक व्लास्टिक ना फेंको, ये हम लोगों का सोच है। My name is Kunwang Tangja, and I'm a tour operator by the name Native Route Tours and Travel. I'm from Tirap district. So आज हम लोग इतारागढ़ में आया हुआ था अब तो का मीटिंग with all the stakeholders. So तिराप लोंगडिंग एक नया सर्किट है, तो उस ईस्टर्न बेल्ट के लिए I have been assigned as the Assistant General Secretary. So with this responsibility, I will uphold the aims and objective, the mission of UPTO, and also to promote that new place like Tirap and Longding. And Tirap Longding जो है एक कल्चरल टूरिज़म और साथ में एडवेंचर टूरिज़म, ये सब वहाँ पे पोटेंशियलिटी है, एंड सबको इनवाइट करते हैं वहाँ पे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम लीम लोई है और मेरे साथ में जोबोम लोलन, हम लोग आलो से आया है। आज ये टूरिज़म अपटुआ जो एक एसोसिएशन है टूरिज़म का, तो उसका आज इंटरेक्शन गेट टुगेदर टाइप का एक प्रोग्राम था, तो उसको अटेंड करने आया है। एंड आई एम बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल अरुणाचल। तो वेस्ट सियांग का जितना टूरिज़म एक्टिविटी है उसको हम लोग जितना हो सकेगा प्रमोशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वेस्ट सियांग में अगर टूरिज़म उसका पोटेंशियलिटी अगर आप लोग उसका बात करते हैं, तो हर कोई को लगता है कि वेस्ट सियांग जो है एक ट्रांजिट पॉइंट है करके, बट इट इज़ नॉट ओनली द ट्रांजिट पॉइंट। उस पर आपका बहुत सारा एक्टिविटी हो सकते हैं। वहाँ पे आपका जो नदी बहता है, वहाँ पे आपका राफ्टिंग होता है, वहाँ पे आपका लोकल ट्रेडिशनल वे में जो मच्छी पकड़ता है वो सब आप एक्टिविटी कर सकता है। और ट्रैकिंग रूट बोलेगा तो वहाँ पे आपका बहुत सारा ट्रैकिंग रूट है। आपका योर्डराबा सबसे जिसको हम लोगों का एक अलग एक टीम था, उसने वो किया था, DTO सर का उससे इनिशिएटिव से उन लोग ने वो किया था, एक ट्रैकिंग रूट गया था। और फिर और एक है अभी आपका बहादुर हिल करके, वहाँ पे भी है ट्रैकिंग रूट ऑप्शन। एंड इन बिटवीन आलो टू मेंचुका देयर इज़ ऑल्सो अनदर लाइक ट्रैकिंग रूट। इट इज़ इन बिटवीन दिस वन तातो साइड पे, वहाँ पे भी दुबुंग करके एक विलेज है, तो उसमें भी एक ट्रैकिंग रूट, बहुत एक्जोटिक ट्रैकिंग रूट होगा अगर हम लोग अच्छा से निकल के लेके आएगा तो लाइक हम लोग का काम क्या है एज ए टूर ऑपरेटर, हम लोग का काम वही है कि एक प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। हम लोग बीइंग लाइक टूर ऑपरेटर फ्रॉम वेस्ट सियांग, हम लोग का काम, और ये मेरा भाई होगा भैया, उसका जो हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट सियांग में जो पोटेंशियलिटी है टूरिज़म सेक्टर को लेके, उसका ऊपर में हम लोग देखते हैं एंड प्रोडक्ट, उसको मार्केटिंग किस तरह से करना है, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभी काबू पे हम लोग एक नाबार्ड का स्पॉन्सरशिप के अंदर पे एक इको कल्चरल टूरिज़म का एक प्रोडक्ट कंटिन्यूशन पे है। तो वहाँ पे क्या होता है, रूरल टूरिज़म है, वो जो रूरल विलेज है, वहाँ पे जितना हम लोग का विलेजेस है उसको उसका जो एथनिसिटी है, जो वो चीज़ को हम लोग जो मेंटेन रखने के लिए उसको मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो हम लोग का वो जो है एक आइडेंटिटी, हम लोग जो है कल्चरल आइडेंटिटी हम लोग जो लॉस करते जा रहे हैं ना, तो उसको एक प्रिजर्व करने का वो बेनिफिट मतलब मोटिव से हम लोग जो है ये प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट किया था। तो वहाँ पे अभी आप आएगा तो वहाँ पे आपका साइकिलिंग रूट है, आपका बर्ड वाचिंग का ऑप्शन है, आपका राफ्टिंग का ऑप्शन है, आपका एंगलिंग का ऑप्शन है, कैंपिंग कर सकता है, और एक एथनोग्राफिक सेंटर है। वहाँ पे आपको पूरा जो गालो कल्चर का जितना भी आपका जो हैंडक्राफ्टेड जो भी आइटम्स है वो मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे हम लोग जो है वेस्ट साइड एम्यूनिटी का तौर पे एक टॉयलेट बना रहा है, उसको हम लोग जो है जितना हो सकेगा मतलब इको फ्रेंडली करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जो है क्या किया कि जितना वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, उसको हम लोग कलेक्ट करके उसका ऊपर हम लोग जो है एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो अभी वो अंडर प्रोसेस में है, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग वो चीज़ को भी कंप्लीट कर लेगा। तो अभी तक हम लोग का यही है। और एडवेंचर एक्टिविटी में तो अभी हम लोग का आलो में बहुत सारा जैसे बागरा फेस्टिवल में हुआ था, ये जो जिप लाइनिंग होना, और फिर जो
हम लोग का DTO सर का मतलब उसका लीडरशिप के साथ में, उसका गाइडेंस के साथ हम लोग ने जितना भी स्टूडेंट को एक 3 डेज़ का इको कैंप करके होता है, वो चीज़ भी हम लोग उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो इस तरह से आलो में टूरिज़्म सेक्टर अभी बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। My name is Chawan Singh Manta, and I represent a company called Manglang Tours and Travel, and I'm based out of Namsa. सर जैसे कि मैंने सर से भी पूछा कि ये पहला गेट टुगेदर था आपदाओं की तरफ से, तो इसमें क्या जानने को मिला और आगे क्या क्या फ्यूचर स्टेप्स ले पाएंगे हम टूरिज्म को लेकर? Basically, this get together is about like हमारे नया इलेक्शन सिलेक्शन हुआ तो नया मेंबर्स आए, and then the new tour operators and also this was an interactive round, and we were discussing about the future course of actions, helping the new entrants and getting to know each other. So basically this was his thing, like what further steps the tour operators will be doing to promote tourism, sustainable tourism in Arunachal. सर जैसे कि आपने बताया आप नामसाई से हैं, तो Yes. हम नामसाई में अगर आप हमारे चैनल के थ्रू से अगर आप प्रमोट करते हैं तो क्या क्या है देखने को मिलेगा नामसाई में टूरिस्ट को? So Namsai is like very upcoming, very happening tourist destination. So the center point of the thing is like now, just the mainstay is the religious tourism with the Golden Pagoda and Buddhist religion and cultural tourism. And now a lot of river caves have come down, people in and around. So you have a feel of like with the cafes and some water sports, and very few places now left with now. We have a lot of things to do with elephants. And nearby we have our Parasuramkund, which is next to Kamakya. So one of the main religious tourism place for Hindus in this part of India. मेरा नाम सिमोन रोनरंग है। आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ पंगसौकान टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड आई हेल फ्रॉम जयरामपुर। सर आपने बताया आप जयरामपुर से हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट को क्या क्या देखने को मिलेगा जयरामपुर में? बेसिकली जयरामपुर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेमेट्री है, और उसके बाद आगे जाएंगे तो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर पॉइंट है वो पंगसौ पास बोल के एक थ्रेट रहता है, तो फिलहाल अभी बंद है कि कुछ प्रॉब्लम्स होने का वजह से, तो वो एक साइट है। और लेक ऑफ नो रिटर्न बोल के एक वहाँ पे लेक है। सो दोज आर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस। और एक तो है ये हैमिल्टन ब्रिज, इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो भी एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देखने के लिए। सर आप अपने फ्यूचर टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है एंड स्पेशली हमारे नामपोंग मानमाओ जयरामपुर जो है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर हाथ है, और ये जो अभी हमने थोड़ा पहले बोला था कि वॉर सिमेट्री है, लेक ऑफ नो रिटर्न, दिस आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड दिस हैज़ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सो इट विल बी गुड फॉर द टूरिस्ट टू विजिट, और विंटर का समय में अगर आए और वहाँ का जो जगह है सुंदरता को देखें। मेरा नाम है श्रीकालन परतिन, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नेचर ट्राइब, मैं पासीघाट का हूँ। और आज इस हमारा वो स्टेट टूरिज़म अपटुआ जो अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है, वो उसका रिसप्लिंग हुआ है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, तो वही अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो सर जैसा कि ये पहला मास मीट इंटरेक्शन था, तो इसमें आप लोग ने क्या बातें की और आगे क्या क्या स्टेप्स लेने के बारे में बातें की? हमारा अरुणाचल प्रदेश हर कोई पता है, पूरा इंडिया को पता है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ वेरी रिच इन टूरिज्म, एंड वी हैव सो मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशन दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड येट। सो हमारा जो मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू का भी बहुत एफर्ट रहा है अरुणाचल टूरिज़म को आगे बढ़ाने का, बहुत सारा स्कीम्स है, बहुत सारा प्लान्स है, तो वही चीज़ को डिसाइड करने आया है कि जितना हमारा अरुणाचल टूरिज़म को डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स बनाते हैं, प्लान्स करते हैं, तो
वहाँ हमारा अपटोआ, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का है, उसका व्यूज़ एंड आइडियाज़ का भी बहुत सारा सीएम जो हमारा ऑनरेबल सीएम जो इनवाइट करता है, तो वही चीज़ को हम अभी फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो प्लान है, जो पॉलिसीज़ है, जिसको हम लोग हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करने के लिए जो है। सर, जैसा कि आपने बताया आप पासीघाट से हैं, जी। तो आप पर्टिकुलरली पासीघाट को टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? So, टूरिज्म के लिए हमारा पासीघाट इस एक्चुअली है इस मॉडर्न टूरिज्म डेस्टिनेशन, इट्स अ ट्रांजिट पॉइंट एक्चुअली। ट्रांजिट पॉइंट वहाँ से पासीघाट से बहुत सारा कनेक्टिविटी वहाँ से बहुत है जो टूरिज्म डेस्टिनेशन, जैसे कि मेचुका है, आनी भी वहीं से जाता है, मोरलिंग नेशनल पार्क है, आपका तूतिंग है, बहुत सारा जो हमारा ऊपर साइड में जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस है, तो उसका एक ट्रांजिट पॉइंट है पासीघाट भी। एंड पासीघाट इटसेल्फ इज ए ग्रोइंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो पासीघाट में बहुत सारा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी है, ये जो दीरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अभी वाइल्ड लाइफ सफारी भी करते हैं। अभी तो पानी भरा है, तो विंटर में हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी भी किया जाता है, तो सिरकी वाटरफॉल है, और अभी बहुत सारा अपकमिंग रिजॉर्ट्स है, एक्जोटिक रिजॉर्ट्स है, तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। और पासीघाट में रिवर रैफ्टिंग होता है, जो सियांग रिवर, जो माइटियस्ट रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो पासीघाट से ही बहता है, तो वहाँ भी वाटर स्पोर्ट्स होता है, बहुत सारा होता है। एंड मोर देन दैट कल्चरल टूरिज़्म भी है, जो हमारा वहाँ पे बहुत सारा आदि के अंदर में भी बहुत सारा विभिन्न प्रकार का वो कल्चर होता है, जो कोई भी बाहर से आके भी उसको देख सकता है। तो सर, आप अपने फ्यूचर टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं फ्यूचर टूरिस्ट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश इस ए स्टेट डेस्टिनेशन वेयर गवर्नमेंट का साथ होके, और हम जैसे टूर ऑपरेटर्स का साथ, गवर्नमेंट का साथ, हम लोग टूरिस्ट को वेलकमिंग के लिए हम लोग जो जितना भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, तो उनको एक सिक्योर फील होना है कि अरुणाचल टूरिज्म इज़ नॉट लाइक अदर प्लेसेस, वी रियली केयर आवर टूरिस्ट, एंड हमारा गवर्नमेंट भी साथ में है हमारा। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ फुनसो गेल्सन, और हम लोग सब तवांग से आए हैं आज यहाँ पर अपतोआ का मीटिंग के लिए, जो टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके मीटिंग के लिए आए हैं। तो आज यहाँ पे आके what we could know is that Arunachal has a lot of potential, and for us being from Tawang, we were grateful to be in this stream. Like even before अरुणाचल में काफ़ी सारे जगह में टूरिज़्म शुरू नहीं होने से पहले भी, सो यहाँ पे जब आया तो भैया लोग से काफ़ी सजेशंस मिला, एंड फर्दर में ऑब्वियसली वी आर लुकिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये लाइन चुन के फर्दर जॉब्स भी देना चाहते हैं, प्लस अपना जगह का कल्चर एंड हेरिटेज को भी प्रमोट करने के लिए काफ़ी बड़ा मौका मिला। एंड थ्रू योर न्यूज़ चैनल हम तवांग लोगों को यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ विजिट तवांग, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स नॉट जस्ट बुमला पास और संगेसर लेक, वी हैव लॉट मोर टू ऑफर, offbeat locations, hot springs, then wildlife way maybe you can spot red pandas and many more. So please come and visit Tawang. We'll offer you a lot of variety of tourism.